پروگرام ہم لوگ میزبان احمد عمران خان حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، ایک پروگرام کے اندر کچھ منٹوں میں پاکستان میں رونما ہونے والے کرائم کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس مملکت خداداد میں جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے پوری دنیا میں جانا چاہتا ہے، جو کہ دنیا کی 7ویں بڑی ریاست ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اس ملک میں بدقسمتی کا سورج کچھ عجیب سا نکلا ہے کہ یہاں پہ باپ ماں اپنی اولاد کو قتل کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی منحوس خبریں اس بڑی تعداد میں پاکستانی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں جن کا حساب ہم لوگ نہیں لگا سکتے۔ آج کے پروگرام میں بھی ایک ایسی ہی انفارچونیٹ کہانی ہے کہ جس میں ایک جاہل باپ نے، جس کے دماغ کے اندر اندھیرے تھے اور اس کے ان اندھیروں کی وجہ سے بیٹی کا شادی کرنے کا عمل اس کے لیے اتنا بڑا ایک صدمہ بنا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے داماد اور پھر بیٹی کو قتل کر دیا۔ یہ وہ انفارچونیٹ جگہ ہے جہاں پہ اس نے اپنے داماد کو قتل کیا۔ اس جگہ پہ اس نے اپنے داماد کو کسی طرح سے دعوت کے لیے بلایا، یا وہ داماد خود چل کے آیا اپنے سسر کے ساتھ، اپنے سسرالیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کے لیے، لیکن غلام حسین نامی شخص نے جو کہ 45 سال کا ہے، اپنی بیٹی کو اس کی پسند کی شادی پر قتل کیا۔ پہلے اس کے شوہر کو، بیٹی تڑپتی رہی، سسکتی رہی کہ اس کو مت مارو، تمہاری گناہگار میں ہوں، قتل کرنا ہی ہے تو مجھے کر دو، اس کی ناحق جان نہ لو۔ لیکن اس شفاق باپ نے اپنی بیٹی کو اس کچے مکان کے کمرے میں تالے میں بند کیا، اپنے داماد کو یہاں قتل کیا، اور اس کچے مکان کے اندر جا کے اپنی بیٹی کو بھی قتل کر دیا۔ ظہیر رورل ایریا ہے، بہت زیادہ ایکسپینڈڈ ہے۔ اس طرح کی صورتحال کے اندر خبر کو کور کرنے میں، آپ کو اپروچ کرنے میں کتنا ایک ٹائم درکار ہوتا ہے؟ دیکھیں احمد، ہمیں اپروچ کرنے میں، کیونکہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، بہت بڑا شہر ہے، اس کو کور کرنے میں ہمارے ذرائع ہوتے ہیں جو ہمیں خبر دیتے ہیں، پھر اس کی کنفرمیشن کے لیے ہم جاتے ہیں۔ جب یہ رات کے وقت یہ ہمیں رپورٹ ہوئی کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی اور داماد کو کہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا، تو ہم جب جائے وقوع پر پہنچے تو اس سے پہلے پولیس وہاں پہ پہنچ چکی تھی۔ یہ محمد حسین نامی شخص جس نے اپنی بیٹی اور داماد کو قتل۔ مرڈر کے کتنے گھنٹے بعد آپ پہنچ گئے تھے؟ ہم مرڈر کے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں ہم لوگ جائے وقوع پہ پہنچ چکے تھے، کیونکہ رحیم یار خان سے کافی وہ دور تھا، اس لیے ہمیں 1.5 سے 2 گھنٹے لگے۔ کل آپ خود بھی دیکھ کے آئے ہیں کہ کن مشکل حالات میں آپ وہاں پہ پہنچے۔ وہ 1.5 سے 2 گھنٹے ہمارے لیے ایک تو رات کا سفر تھا، کچے کا علاقہ تھا، پہنچنا بھی مشکل تھا، لیکن بہرحال فرائض میں شامل تھا۔ ہم پہنچے، ہم نے اس کو رپورٹ کیا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو کڑھاڑیوں کے وار کر کے اپنی بیٹی اور داماد کو قتل کر دیا۔ ظہیر، اس کیس کے اندر جو ایکیوز لوگ ہیں FIR میں، ایک شخص گرفتار ہے جس کا نام ہے غلام حسین، جبکہ اس کے معاونت میں اس کے بھائیوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے بھائی کہاں پہ ہیں؟ احمد، اس کے بھائی اسی موقع پہ سے فرار ہو چکے تھے، پولیس کے چند منٹ پہلے وہ فرار ہو چکے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کیس میں بھائیوں کے ساتھ اس گھر کی جو عورتیں ہیں وہ بھی شامل تھیں، جنہوں نے بچی کو کمرے میں بند کر کے تالا لگایا۔ اس میں عورتوں کا بھی انوالومنٹ ہے، لیکن وہ بھی ابھی سب جو ہے نا جو ہے وقوع سے فرار ہیں۔ ظہیر، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ دڑبا، یہ کبوتروں کا دڑبا، اس دڑبے کے دروازے پر کلہاڑے کا وار کر کے اس نے اپنی بیٹی کی گردن بھی آدھی کاٹ دی۔ یہ گھر جس کے چاروں اطراف فصلیں ہیں، چھوٹا سا مڈ ہاؤس، یہ غلام حسین کی جنت بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ گھر غلام حسین کے جہنم میں تبدیل ہو گیا ہے، جہاں پہ غیرت میں آ کے اس بے وقوف بدبخت نے غصے اور غیرت میں مشتعل ہو کے اس نے 2 قتل کیے، اور وہ پیچھے ایک بوڑھی ماں کو چھوڑ گیا ہے، اپنے لواحقین کو چھوڑ گیا ہے، ایک بیوہ بہن ہے، اس کے اپنے 7 بچے اس کی بیوی کے ساتھ مفرور ہیں،
اور وہ اب نہیں سوچ سکتا کہ اس کی بیٹیوں کی غیرت کو کس حد درجہ خطرہ ہوگا جب وہ جیل میں سزا کاٹ رہا ہوگا، یا اس کی سزا کے مطابق، اس کے گناہ کے مطابق اگر اسے سزائے موت ہو گئی۔ اساں ایتھے ہی سے میرا بچہ، اساں ایتھے ہی سے میرا پوتر غریب ہے، اڑیاں ہوندا شاید چیز نہیں پی سامان ایتھے ہی روت گل آیا او پیچھوں وہ جوان آپ ہی آئے۔ لڑکا لڑکی دونوں خود آئے؟ ہاں دنیا کیوں آئے تھے؟ ڈار جوان کی جو پتہ ان کو حال جو بھئی میرا کیا کرے سن اے پتہ رکھنا جو مکے کھڑے ہیں۔ غلام حسین آپ کا بھائی ہے؟ ہاں میرا بھائی۔ کیا ہوا کیا تھا؟ دعوت میں بلایا تھا؟ دعوت کہیں نہ جن چنگی تو نہ کر گئے، اس کا کہیں نہیں ہو کچھ رہا۔ چنگی کہنا کر گیا ہاں تو دشمن اساں کو کیا کرتے دعوت کروں ہاں آتے ہی تھیں آگے۔ خود کیوں آئے تھے وہ دونوں میاں بیوی؟ کیوں آئے تھے؟ صلح کرنے کے لیے؟ اللہ جانے جی میں ہیں سب کیا پتہ۔ عبدالستار تھوانو آ کے تڑیاں لاندا سی؟ ہوں میرے پوتر کو اساں تو پوتری ٹھیاں سے نا وہ آنا کراچی میرا پوتر غلام حسین نو کراچی آئے کنے چیر ہویا؟ غلام حسین آنا کراچی جنڈی ڈھیے ہوں کو تڑیاں دیندا ہوں کو بڑا تے کو تھانے دی واسطے مرا گس تیرا گھر دا گھر سارا لڑا گنسا۔ عبدالستار جو اس گھر کا داماد تھا، جس نے اس گھر کی لڑکی کو بھگا کے شادی کی، کراچی میں وہ کافی عرصے سے مقیم تھا، شاید اس کے پاس پیسے ہوں جس کی وجہ سے اس پیسے کا جنون اس کو ہو۔ اس علاقے میں بخدا خدا کی قسم یہاں پہ اپروچ کرنا آسان نہیں ہے۔ کم سے کم رحیم یار خان سے 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو، اس کے بعد آج سے 1.25 گھنٹے کا رورل ایریا کے اندر ڈرائیو، جہاں پہ بالکل کچا روڈ ہے، روڈ نہیں بنی ہوئی۔ اس علاقے میں عبدالستار اپنی بیوی کے ساتھ آیا اور بقول غلام حسین کی ماں کے اس نے اس کے خاندان کو دھمکیاں دیں۔ مائی کے بتانے کے بعد کہانی سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں پہ آئے۔ غلام حسین نے اپنی بیٹی اور داماد کو قتل کر دیا، جس کا مقدمہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی تحصیل خانپور کے تھانہ سیجا میں رجسٹر کرایا گیا۔ اس تھانے کے ایس ایچ او ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اسلم صاحب، وقت کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ اس کیس کے حوالے سے کیا پیش رفت پولیس نے کی ابھی تک؟ یہ مورخہ 27/6/15 کا وقوع ہے کہ میرا ایس آئی میں ہمراہی ملازمان پیٹرولنگ پہ موجود تھے کہ موضوع جگنی پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ کوئی شور شرابے کی آواز آئی ہے۔ ان کو پتہ چلا کہ کوئی بندے لڑ رہے ہیں آپس میں۔ یہ موقع پہ چلے گئے، گاڑی سڑک پہ کھڑی کر دی اور پیدل نیچے چلے گئے ہیں۔ نیچے گئے ہیں تو دیکھا ہے کہ غلام حسین جو ہے یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے بندے کو مطلب کہ مار رہے تھے۔ یہ پولیس نے دیکھا؟ پولیس نے، کیونکہ پولیس کی مدعیت میں ہی ہوا ہے نا پرچہ۔ اس کے بعد یہ بندے جو باقی تھے وہ بھاگے، ایک بندہ اس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، بندہ یہ جو اصل تھا یہ پکڑا گیا ہے۔ اس کے بھائی جو ہیں ان پہ ہم ریڈ کر رہے ہیں، متواتر ریڈ کر رہے ہیں۔ آلہ قتل برآمد ہو گیا؟ نہیں، آلہ قتل اس نے چھپا دیا تھا کیا؟ بس ابھی کہہ رہے ہیں سے ریمانڈ پہ پڑا ہے، ریمانڈ جسمانی پہ اس کو کریں گے، ریمانڈ میں ریکور کریں گے۔ اس کو قریباً ہفتہ ہو گیا، آلہ قتل نہیں ریکور کر سکے آپ، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہو جائے گا، ریکور ہو جائے گا۔ 7 دنوں میں کیوں نہیں ہوا اور آگے آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یا تو پھر آپ نے ریکور کر لیا ہے، آپ نے اس کو ابھی؟ نہیں ابھی ریکور نہیں ہوا، ہو جائے گا، رجسٹر نہیں ریکور ہو جائے گا۔ ہو جائے گا۔ غلام حسین جس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا، داماد کو قتل کیا، وہ ببانگ دوہل اس چیز کو مان رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس قتل میں، اس گھنونے عمل میں میرے کسی بھائی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ نہیں، ایک بندہ ایک بندہ جو ہے نا 2 بندوں کو نہیں مار سکتا، الگ الگ مارا نا، کلہاڑی کا وار کر کے۔ کلہاڑی کا وہی ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ دونوں کو نہیں مار سکتا۔ وہ لڑکا بڑا طاقتور لڑکا تھا جو مرا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، اس مدعیت میں جو پرچہ درج کیا گیا پولیس کی، اس کے اندر جو اس کے بھائیوں کو انوالو کیا جا رہا ہے 302 کا مقدمہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ بھائیوں کو انوالو کر کے پھر بارگین کیا جائے، 1-2 لاکھ میں ایک بندہ سامنے آئے نا، ابھی تو سامنے آئیں گے، علاقے کے لوگ ہوں گے، ان کے مدعی جو ورثہ ہیں ان کے سامنے بات چیت ہوگی۔ یوزلی پولیس کا پیٹرن یہ ہے 302 کے مقدمے میں اچھی دہاڑی لگتی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر کلہاڑی آلہ قتل نہیں ملتا تو قانونی حوالے سے عدالت میں
इस केस पे किस तरह से असर अंदाज क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, श्योर शॉट क्यों नहीं मिलेगा। उससे शादी से पहले भी पैसे वगैरह खाते रहे, सब कुछ करते रहे। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲ ਸੀਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, 3 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 1 ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मोहम्मद अब्दुल सत्तार का घर जो कि सादकाबाद में वाक़ है, जिसमें उसकी माँ, बाप, बहन, भाई और उनके बच्चे रहा करते हैं। मोहम्मद अब्दुल सत्तार भी कुछ दिनों पहले तक, फ़कत 1 हफ़्ता पहले तक इसी ख़ानदान में अपनी माँ और अपने बाप के साथ रह रहा था। उसकी कत्ल से पहले के दिन किस तरह से गुजरे इस घर में, ये जानते हैं मोहम्मद अब्दुल सत्तार की फैमिली से। 5-6 महीने से वो आपके पास रह रही थी, आपकी बहू। दोनों मियाँ बीवी राजी खुशी रह रहे खुशी थे? माशाल्लाह, बिल्कुल खुशी, खुशहाल। आपकी बहू का आपके साथ ताल्लुक कैसा था? बड़ा माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची, बड़ा खोल कर देती। अब्दुल सत्तार के ससुर को उससे झगड़ा क्या था, लड़ाई क्या थी, किस बात पे लड़ाई होती थी? खुश भारना सारा रिश्ता दिता है, खुश भारना। पिछे बार खान दा भी सानू पैसे दे, खांदा पिंदा रहा। मैं गई उन्होंने घर गई, बेटे ने उठा ले गया चोर ने। 30,000 रुपया सी, कपड़े पैसे बच्चा। मैं इसे टेलीफोन किया है, मेरे बेटे ने बेटी को उठा के कहाँ से ले गया वो? उथे आदे घर, उथे किराए ते। फिर दस मैं गई, कराची की बात? कराची की बात है, कराची दी। अच्छा मैं गई, मेरी बहू दे, मैं अंदर वड़ गई। तेरी बहू को नहीं, भाई दे घर चली गई। अगे वो तो भाई दे घर को नहीं गई। मैं मैंने बहू दो, मैं रोटी मिन्नत करनी है, तू बिठा लिया है, कर लिया है। आखन लगे अम्मा कोई डर नहीं है, तेरी बहू आ जाएगी। बहुत उनके बड़े भाई घर से टेलीफोन किया 8वें दिन। ये गुलाम हुसैन ने आपसे कहा कि तेरी बहू आ जाएगी? हाँ, उन्होंने फिर टेलीफोन किया है। फिर मेरा बेटा है वो आधे बड़े भाई को लाया है, खुद गुलाम साहब ने भेजा। बेटे ने आख्या भी तू दे दे। हाँ मैं उथे हाँ, बेटे मैं 15 दिन लाते हैं, मेरी बहू आ गई। कपड़े नहीं दिते, फिर खुद कपड़े उनका भाई कुआरा है, गट्टू भरते बच्चे फिर अखन सामने दे गए। कुछ रह गए, कुछ रह गए। 30,000 नहीं देता। बहन को जरा हाँ। माइक देना। झूठला बच्चा। ये जो वालदा ने सारी बात बताई, इसको थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में बयान करें। लड़ाई क्यों हो रही थी, वो 30,000 रुपए क्यों लेके गया, किस तरह से लेके गया? कराची शहर में मैं जो भी बोलूँगी ना सच्ची बोलूँगी, झूठ कभी भी नहीं बोलूँगी, ठीक है ना। मेरा भाई है ना, उसने लड़की पसंद करी या जैसे भी कोई चक्कर चला, इसका हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें कहता रहा कि रिश्ता देखो। हम कहते थे अभी नहीं। उन दिनों में मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे माई बाप और मेरे भाई वगैरह कहते थे अभी नहीं, अभी हमारे पास इतना खर्चा नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है, अभी हम नहीं करना चाहते। तो उन दिनों में वो कह रहा है नहीं। उन दिनों में उनकी माँ और सब ने मिलके निकाह कर दिया। उसके बावजूद सही है, हमारे घर आए हैं। लड़की की माँ ने? हाँ। लड़की की माँ ने, लड़के के सब घर वालों ने। लड़के के चाहे बाप है या नहीं है इसका हमें मालूम नहीं है, लेकिन रिश्ते करने में सब कुछ हमने उससे फोन पे बात में से कोई था वहाँ पे? नहीं, हम नहीं गए। मतलब अब्दुल सत्तार अकेला था? हाँ जी। और उसने वहाँ पे निकाह कर लिया? हम फोन पे बात करते रहे हैं, हम फोन पे बात करते रहे हैं। उसने पैसों वगैरह की भी बात करी है। उससे शादी से पहले भी पैसे वगैरह खाते रहे हैं, सब कुछ करते रहे हैं। उसकी जनरल स्टोर की दुकान थी करोड़ पक्का में। हमें पता नहीं है कि कैसे उनका चक्कर चला, कैसे नहीं है। तो उसकी दुकान वगैरह खत्म होगी। करोड़ पक्का में किसकी दुकान थी? भाई की, अब्दुल सत्तार की। हाँ ये जी। कितना अरसा पहले की बात है? ये 2-2.5 साल हो गए इन बातों को। उसके बाद वो कराची चला गया? हाँ जी, इसी के पीछे गया। इसी के पीछे गया? हाँ जी। इनके घर वाले पहले करोड़ पक्का भी गए। हमें पता नहीं है ये कौन है कौन नहीं, लेकिन इनका ताल्लुकात था। हमारी बात फोन से होती थी, लेकिन हम नहीं सही समझते थे उनको। अब्दुल सत्तार कराची गया इस लड़की के पीछे, और वहाँ पे क्या करता रहा? वहाँ होटल पे काम करता था। होटल इसने बनाया है। अपना होटल बनाया? हाँ कि जी, वेट हाँ नहीं जी। कर रहा था? नहीं, होटल अपना बनाया होटल इसने। बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, उसके पास होटल पैसे थे? ये हाँ जी, पैसे थे। उसने अपना कितने होटल पैसे बनाया। लेके गया? नहीं, हमें नहीं पता। अब्दुल सत्तार ने आपको बताया कि वो इस लड़की से शादी करना चाहता है, और हाँ जी, आपके साथ ये जिक्र तस्करा हाँ हुआ? जी, अपनी मेरे से- वालदा और भाई को भी बताया? हाँ, लड़की की बात भी हुई है और लड़की की माँ की बात भी मेरे साथ हुई लड़की ने है। क्या बताया कि वो उसकी फैमिली? वो कह रही है कि मेरे सब घर वाले राजी हैं, बाकी वो है ना पैसे वगैरह खा रहे हैं, तो ये पैसे मांगता है, वो ना रिश्ते से इनकार करता है। कौन पैसे मांगता है? इसका बाप।
इसका लड़की ने बताया? नहीं, मेरा भाई पैसे खिलाता रहा ना जो, तो मेरा भाई पैसे मांगता था, वो फिर रिश्ते से इनकार करता था। और कितने पैसे थे वो? लापता नहीं, हमें नहीं पता कि कितने पैसे हैं कितने नहीं, हमने कभी उससे ये बात करी भी नहीं है। ठीक। अब्दुल सत्तार अपनी बीवी को लेके इस घर में आपके माँ बाप के पास कब आया? पहले महीने में आया था। पहले महीने मतलब शादी की? हाँ जी, शादी नहीं, शादी तो पहले उससे 1 साल हो गया शादी हुई को, लेकिन पहले महीने में हमारे घर आया था। जनवरी में? हाँ जी। यानी कि इस साल के पहले हाँ महीने जी। में वो लेके आ गया था। हाँ जी। क्यों छोड़ के आ गया कराची? वो नहीं छोड़ के आया कराची, मिलने के लिए आया था, मिलने के लिए आया जनवरी में हमने। मिलने के लिए आया और मार्च तक जून जुलाई तक वो यहीं पे रहा? नहीं, चला गया था वापस हमारे बीवी को पास। साथ ले गया हाँ आपने? जी, सिर्फ से हमारे पास 8 दिन रहा है, मिलने के लिए आया था, हमें दिखाने के लिए आया था भी ये मेरी बीवी है और ये मेरे घर वाले हैं, इस तरह। तो हमारी बहुत अच्छी 8 दिन गुजरे हैं, सही गुजरे हैं, फिर चला गया है। उसके बाद उसकी बीवी फिर आई है, फिर अकेली आई है, फिर उसके बाद अब तीसरी दफा आई है हमारे पास। अकेली आई, यहाँ पे रही कि अपने बाप के घर रही? नहीं, हमारे घर रही है, कितना अरसा रही? तकरीबन 8-10 दिन रही है हमारे घर। उसके बाद फिर 8-10 यहाँ से कराची चली हाँ गई? जी, वापस चली अपने गई। बाप के घर नहीं गई? नहीं गई। फिर उसके उसके घर वाले कराची रहते हैं, यहाँ रहते नहीं है। उधर क्या करने के लिए गए थे दोनों? हमें नहीं पता। नहीं, कुछ तो वो आपके साथ रह रहे थे, नहीं, कुछ तो पता होगा कि नहीं हम सादकाबाद से बाहर जा रहे हैं, खानपुर कहाँ, सादकाबाद कहाँ? ये जरा वाले साहब को माइक देना। वो तो आए ने ते मिलन 2 दिन रहे ने, फिर मेरा भतीजा फौत हो गया, फिर उत्थे चले गए। उतो फिर परा भावलपुर चले गए, किरोड़ पक्के, उतो को पैसे लेने थे, पैसे लेते आया 80,000 बता रहे हैं पिछो मालिक। किससे? पिछो कमेटी के कोई पैसे लेने हैं किरोड़ पक्के से, 80,000 लेते आया है। फिर उसे आ गया ख़त्म वाली था, ख़त्म भुगताते। फिर मतलब अपनी बीवी भी, हम चीरा भी, मैंने कहने लगा तू चलेगा? मैं नहीं, कल है जमेरात, मैं जमेरात भुगता देवांगा, तू अपना तो तू रह, कट्ठे चलेंगे। नहीं रहना फिर तुसी चलो, मैं फिर जमेरात पहले आंदी पी। असी फिर प्यो पुत्र बड़ा, मैं वड्डे दी, असी घर उत्थे रहे। वही फिर आ गए ने इस तो फिर मिलते, फिर हम शीरम लाल लेते उत्थे चला गया। कोट सुहाबे रहा है 2 दिन। फिर उन्होंने फोन आया मैं कुरान वो मुड़ माई का वो घर वाली का उनकी सस का भाई कुरान चाह रहे हैं, कुरान सिद्धे रख रहे हैं भाई सुलह करने पे भी 2 पैसे मांगता है, होर भी दें मुँह झाड़ी पा दे, सुलह कर लो। ये हमशीरों नहीं बता गया, वो चला गया। वो अपना सामने खड़े थे, घर का उन्होंने नहीं पता थे। उसके अब्दुल सत्तार को उसके घर का नहीं पता था? कोई पता नहीं था, झूठ मारी। कराची का पता नहीं, कराची हो रहे थे, इतना कोई इल्म ही थी। अच्छा, ये उसका सुसर यहाँ पे कब से आया हुआ था इस घर में? वो सुसर कब से आया हुआ था? कोई पता नहीं था, आपको नहीं पता? हाँ। अच्छा, वो चला गया, उन अंदर भी नहीं जाने देता। तू मैं थानेदार कह रहे ने भाई अंदर भी नहीं गया, बाहर ही पकड़ लेने। 8 बंदे ने, 4 बार बंदे जलन वाले ने भाई इतने नेड़े ना हो, ते 4 बंदे मारन वाले ने। फिर उनकी सस भी आई भैया ने। इथों मिलन वास्ते भैन नूं गया, आपां भैणां नूं जांदे मिलन वास्ते, भाई जांदे ने भैणां नूं मिलन वास्ते। अगों गया ते ससुराल वाले ने बुला लिया भी सानूं मिल के जाओ। फैसला एक सिर्फ बाप नहीं सी राजी, बाकी सब राजी सी, एक बाप नहीं सी राजी हैगा, सब राजी सी। पैसा खाया होया सी उन्होंने कहा भी आप सुलह करते हैं, तू दंड रख, लख दिना 2 लाख दिना। पता उन्हें ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਰਦਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਪਾ ਦੇ ਸੀ ਗਰਦਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 3 ਕਤਲ ਕੀਤੇ, 3 ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲ ਸੀ, 3ਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, 3 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 1 ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 1 ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਿਲਣ ਜਾਵਣ, ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। जिन माओं के जवान बेटे नाहक कत्ल कर दिए जाएं और जिस मुल्क में ये दस्तूर आम हो जाए, वहाँ पे अक्सर माएँ
ऐसे ही निढाल होके गिरी हुई मिलती हैं। ये तो हौसला है इस माँ का जिसने उस लड़के को जना था, जिसने उस लड़के को पैदा किया था, कि ये अभी तक सांस ले रही है। जो दुख इसके दिल पे है वो कोई माँ तो महसूस कर सकती है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बाप भी महसूस नहीं कर सकता। नाज़रीन, गुलाम हुसैन जो कि एक बाप है, उसने पसंद की शादी पे अपनी बेटी और दामाद को कत्ल कर दिया। ये किस किस्म की जहालत है जिसको हमने गैरत का नाम दिया है, और बेशर्मों की तरह हम अपने इस मुल्क में, इस सोसाइटी के अंदर उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसकी हकीकत जानने के लिए हम मजहबी स्कॉलर हुमा तकवी के पास हाजिर हुए, उनसे इस केस पे बात करते हैं। हुमा, रहनुमाई कीजिएगा कि मजहब इस्लाम एक लड़की को उसकी शादी से मुताल्लिक क्या क्या इख्तियारात देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत अफसोस उस बात पे जो आपने भी बात है, और ये इतना सीरियस इशू है। पहली दफ़ा गैरत के नाम पे औरत का कत्ल नहीं हुआ पाकिस्तान में, ये आम है। मतलब मार कर जो एक काम ऐसा है जो गैरत के टोटली अगेंस्ट है, वो करके इंसान गैरत का नारा बुलंद करता है। पहली बात तो ये है। और गुनाह भी एक ऐसा गुनाह जो इस्लाम की नज़र में गुनाह नहीं है। मतलब बाप उसको गुनाह समझ रहा है कि एक बच्ची ने अगर पसंद की शादी की है तो बाप उसको गुनाह कंसीडर करके उसको मार रहा है। तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस्लाम में औरत इस वाहिद मजहब इस्लाम है जिसमें औरत को मुकाम दिया गया, औरत की राय को कंसीडर किया गया, औरत प्रेस्टीज दी गई, पैरों के नीचे जन्नत दी गई। आप यानी कि हर रिलेशन को इस्लाम ने एक नाम दे दिया। अगर उसको बेटी रखी गई तो बेटी को बाप की तौकीर बना दिया गया, बाप की इज्जत और गैरत बना दिया गया। अगर बीवी बनाया तो उसको शौहर का निस्फ ईमान बना दिया। अगर माँ बनाया तो कदमों के नीचे जन्नत बना दी। बहन बनाया तो बहन जो है मुहाफिजत, अपने भाई की दुआओं का हिसार। मतलब हर तरफ से इस्लाम ने औरत को एक तकरीम और एक इज्जत दी। और हकूक का जहाँ तक सवाल है, शादी एक ऐसा इशू है जिसमें दोनों फरीकों की राय बराबर ही कंसीडर की जाती है। मतलब ये नहीं कि मर्द राजी और औरत राजी नहीं तो आप पकड़ के शादी करते हैं। कोई भैंस बकरी नहीं है औरत। इस्लाम ने औरत पूरी लाइफ गुजार रही है, पूरी जिंदगी। आप अगर निकाहनामा देखें तो निकाहनामे को हमारे यहाँ तो खैर रीड करने का उसको रवाज ही नहीं, कि लड़की को इतना दिया ही नहीं गया कि वो उस बेचारी को पढ़े कि वो क्या है। अगर आप निकाहनामा बच्ची को दें तो उसमें 10 लाइनें लिखी होती हैं जिसमें बच्ची अपनी शराइत लिख सकती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। मतलब वट एवर, जरूरी नहीं दौलत के लिहाज से, मॉरली भी वो अपने हस्बैंड से डिफाइन कर सकती है। और जहां तक अभी आपने सवाल किया कि इस्लाम औरत को क्या कहता है कि किस तरह शादी की जाए, सबसे पहली बात औरत की राय का जहां तक सवाल है तो जनाब खुदैजा सलामुल्लाह अलैहा का प्रपोजल खुद बताता है कि औरत को कितना हक हासिल है पसंद की शादी करने का। पहले तो मिसाल रिसालत में आपने वहां कायम कर दी कि औरत खुद किसी ख्वास्तगारी का इजहार कर सकती है मर्द के साथ। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात जो है वो जब मौला अली ख्वास्तगारी कर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए रिसालत में आपके सामने पहुंचे, हालांकि किताबों में लिखा है कि रिसालत में आप खुद विलिंग थे कि ये रिश्ता होता, लेकिन जब प्रपोजल आ गया, जब उन्होंने फॉर्मली प्रपोजल दिया तो रिसालत में आपने फौरन हाँ नहीं की, वो रुके। उन्होंने कहा अली मुझे पहले फातिमा से उनकी रजामंदी ले लेने दो। जब वहां से रजामंदी हुई तब रिसालत में आपने मौला अली को हाँ कहा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम कितना लिबरल है मजहब औरत के बारे में और उसकी राय। उसने एक भी नहीं मानी, बोलते तुम मेरा कुछ कर भी नहीं सकते। तुमने कहा मैं कर सकता हूँ, मैं बोला मार दिया। बाप ने एक दफ़ा फिर अपनी बेटी और दामाद को कत्ल किया। इस कत्ल के पीछे तहरीक क्या थी जिसकी वजह से एक इंसान अपनी दरिंदगी और सफाकी को इस हद दर्जा पहुंच गया कि इबलीस भी शायद इसके सामने शर्मिंदा हो। तुम्हारा नाम क्या है? गुलाम हुसैन। कत्ल तुमने क्यों किया? कत्ल इस वजह से किया, मेरी बेटी भगा के ले गया था कराची से। बेटी की उम्र क्या है तुम्हारे? होगी 20 साल है। 20 साल मतलब वो बालिग थी? जी। उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली? जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये कितना अर्सा पहले की बात है? ये पहले महीने का वाक़या है। पहला महीना जनवरी की बात है इसी साल की। तुम भी कराची में थे? जी मैं कराची में उम्रा गुजारी है। बोला ये दोबारा ऐसा ढूंढ निकाला है, पीछे बंदे लगाए थे। इसने बोला भाई मेरे पास बच्ची नहीं है। अब्दुल सत्तार ने कहा? जी। ढूंढा तुमने कैसे? तुम्हें तो नाम नहीं पता था। वो ये होटल पे काम करता है सर।
नहीं, तुमने क्या कहा कि नामालूम एक शख्स है उसको? इसके पास थी दूसरी बीवी, वो पानी हमारे घर से लेने आती थी, ऐसा में फिर वो उसी रात वो भी चली गई इससे, हमारे को शक पड़ गया। जैसे बंदे एक डुई में गए, इसने बोला जो भाई मेरे पास नहीं है लड़की। हम खामोश हो गए, पूरा महीने ढूंढते रह गए। बाद में पता चला तो ये डारे किया आके मेरे को धमकी दिया, जब भी छेड़खानी नहीं करनी, नहीं तो तेरे मैं बच्चे भी ख़त्म कर दूँगा। फिर मैं उठू रह के भागा अपना वापस। तुमने पुलिस से रब्ता नहीं किया? रपट नहीं कटाई। क्यों? बस लोगों ने बोला छोड़ा के रपट नहीं कटा। लोगों ने कहा था कत्ल कर देंगे बाद में? नहीं, कत्ल का भी नहीं उन्होंने बोला था। मैं खुद तंग होके वापस आ गया, मेरे को था 3-4 महीने हो गए वापस गाँव। तुम अपनी इज्जत की वजह से तंग होके वापस आ गए? वापस आ गया। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर इधर ही आ गया, बस ये इसी रमज़ान में वो आ गया दूसरे लड़के ने आवाज़ जब तुम वापस आए तो जहन बन गया तो तुम्हारा कि अब मैंने इसको कत्ल करना? नहीं, बिल्कुल हमने बोले ना हम कराची जाएंगे तो ना उसके मथे लगेंगे, बस अपने बच्चों का पेट पालना। कत्ल का तरकीब तुम्हारे जहन में कब आई? जैसे ये इधर आया ना, उसको फिर भी हमने बहुत समझाया, जो भाई चल घर पे बैठ, 4 बंदे बिठा के फैसला कर लेते हैं। बेटी को कहा आपने? उसी आदमी को ऐसा में, उसने एक भी नहीं मानी, बोलता तुम मेरा कुछ कर भी नहीं सकते। बस सर यही गुस्सा आया, तुमने कहा मैं कर सकता हूँ, बाबला मार दिया। तुम्हारे घर किस तरह से आया वो घर दूसरे के घर में आया तो उन्होंने आवाज़ दिया भाई तेरी बेटी और वो आदमी आया है, तो मैंने बोला भेज दो, बोलते वो नहीं आ रहे। फिर मैं चला गया, बस वो मेरे जाने से पहले वो उठने लगे, बस उधर ही इसको मैंने पकड़ा। मैंने बोला चलो घर पे चलो, बोलते नहीं जाऊंगा। मैंने बोला चलो भाई 4 बंदे बैठ जाते हैं, बोलते नहीं। बेटी भी थी तुम्हारी वहाँ मौजूद? बेटी क्या कह रही थी? बेटी तो यो खामोश थी। फिर तुम घर किस तरह लेके आए उसे अपने? बस वो बंदे काफ़ी आन, कोई पकड़ने वाले आन, कोई छुड़ाने वाले आन, तो उसको पकड़ के लाए। पकड़ के दोनों को अपने घर ले आए? लड़की घर भाग के आ गई थी, ऐसा समझ, तो लड़के को पकड़ के लाए और उधर ही लड़ते ना उधर ही आकर मार दिया। कैसे वो जरा मारने का भी तो वाकया बताओ ना। कि पहले वो भैंस का किला पड़ा था, वो उसके सिर में डंडा मारा, वो गिर गया। किला मारा कि डंडा मारा? वही डंडा ही समझो, किला होता है ना भैंस का, ठीक है, वो उधर ही मैं बना रहा था, वही डंडा मारा, चौदीवारी के पास ही पड़ा था। वो नीचे गिरा, बाहर कुहाड़ी पड़ी थी, मैंने उठा के कुहाड़ी मार दी। बकाया बंदे जो है भाग गए। कुल्हाड़ी कहाँ मारी? गर्दन के ऊपर। तुम्हारे सामने वो मतलब मर गया? उसी टाइम जी। बेटी को किस तरह मारा? बेटी को घर पे जाके मारा। वो कैसे मारा? अकेले ने मारा जी। कैसे? उसको भी कुल्हाड़ी मारी सर। कुल्हाड़ी मारी। बेटी को पता था कि तुम उसके शौहर को बाहर मार आए हो? नहीं, उसको ये पता जो भी बाहर लड़ रहे हैं। उसने को वास्ते तुम्हें दिए, को तरले डाले? सर बस उसको धक्का दिया, नीचे गिरी, ऊपर से कुल्हाड़ी मैंने मार दी। तो उसको कहाँ मारी कुल्हाड़ी? उसको भी गर्दन पे। तुम इतने ज़्यादा जुनून में क्यों चले गए थे, इतने पागल क्यों हो गए थे, कत्ल किया? बस सर मजबूरी और गैरत दबे चाह के मार दिया, जो भी इधर तक भी मेरे को इसने नहीं छोड़ा। गैरत क्या होती है? देख लो सर, गैरत क्या होती है इज्जत की। जिसने मेरे को कराची में भी जलील करा, इधर मेरे गांव में किसी बच्चे को भी पता नहीं जो भी इस बंदे के साथ ये वाक़या गुजरा हुआ है, इधर भी मैंने किसी को नहीं बताया हुआ। तुम तो जाहिल आदमी हो, तुमने अभी कहा तुम्हें तो अपने नाम के मतलब नहीं पता, गुलाम हुसैन का मतलब तुम्हें नहीं पता, तो तुम्हें गैरत का क्या पता होगा, जाहिल आदमी। बाकी उन 5 बच्चियों का क्या कसूर है जिनको तुम अब हालात के दहाने पे छोड़ के जा रहे हो, जिनको इस हवस वाली दुनिया के सामने छोड़ के जा रहे हो? उनकी इज्जत के बारे में तो उसकी गैरत नहीं आ रही तुम्हें? तुमने जब कत्ल किए तो तुम्हारी मदद किसने की? किसी ने मदद नहीं करी, भाई थे वो, भाई भाग गए। वो क्यों भाग गए? बस जैसे बंदा गिर गया, मैंने डंडा मारा, वो भाग गए, तो मैंने तो वो जो तुम्हारी गैरत थी, तुम्हारे भाइयों ने मदद नहीं की तुम्हारी गैरत की तकमील में? भाग गए। इस्लाम के अंदर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मिसालें सेट की हैं जिसमें बेटी की रजामंदी शादी के हवाले से वो बड़ी अहमियत की हामिल है। तुम्हें नहीं पता था ये? नहीं है सर, मुझे पता नहीं था। नाज़रीन, इस केस के हवाले से अब बात करेंगे डीपीओ रहीम यार खान तारिक मस्तोई से, जिनके साथ हम मौजूद हैं। तारिक साहब, ये केस जिस अपनी नौयत में बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। एक तरफ कातिल की, मकतूल की फैमिली इल्ज़ाम लगा रही है कि कातिल पैसे लेता था, कातिल गैरत का इसको रंग देने की कोशिश कर रहा है। आपकी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या चीज़ सामने आई है?
देख लें, ये हमारा माशरा जो है एक मेल शॉविनिस्ट किस्म का माशरा है, जिसमें मर्द की मर्ज़ी का अंसर जो है ना वो ज़्यादा काउंट किया जाता है। औरतों को इस हद तक आज़ादी या उनको अपनी मर्ज़ी से जो है ना चलने का हक़ ज़्यादा नहीं दिया जाता है। तो ज़्यादातर जो इसमें शक है वो यही गैरत के नाम पर ही ये कत्ल हुआ है। पैसों के लिए जहाँ तक बात है तो उसमें लोग बहुत सारी स्टोरीज़ भी मेकअप करते हैं अपनी स्किन को सेव करने के लिए या क्राइम की इंटेंसिटी को कम करने के लिए, कि थोड़ा सा जो है ना अदालत में जाके हमें कुछ बेनिफिट्स मिल सकें। वो बात तो हो सकती है, लेकिन जो आपने भी इंटरव्यू किया, जो हमने भी उसमें तफ्तीश की, तो जो कातिल हैं वो इस बात पे ज़्यादा कहते हैं कि हमें इसी बात का रंज था कि लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और उसमें हमारी मर्ज़ी का आंसर शामिल नहीं था। तारिक साहब, इस केस के अंदर पुलिस मुद्दई है, इस केस के अंदर मकतूल की फैमिली को मुद्दई क्यों नहीं बनाया गया? ठीक, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमने माजी में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि इस तरह के गैरत के नाम पे कत्ल जो कबायली माशरे में होते हैं, उसमें अगर मकतूल की फैमिली को मुद्दई बना दिया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि मकतूल की और कातिल की फैमिली आपस में बैठ के सुलह सफाई कर लेते हैं, किसी सरदार के डेरे पे कट हो जाता है या वो फैमिली वाइज बैठ के जरगा या पंचायत हो जाती है। तो उसमें ये खदशा होता है कि वो जो मासूम औरत बेचारी गैरत के नाम पे कत्ल हो गई, उसका कत्ल ज़ाया हो जाता है। इस वजह से पुलिस खुद मुद्दई हो जाती है, ताकि कल को अगर कोर्ट में जाके वो बयान दे दे और उसकी वजह से कातिल जो है ना वहाँ से बरी हो जाए, तो एक पुलिस वाला जो है ना वो इस सिस्टम में नहीं आएगा, वो उस बात पे डटा रहेगा और वो कहेगा कि जी ये बिल्कुल कत्ल हुआ था, मैं ही इसका मुद्दई हूँ और इस बंदे को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंसानी जान का कातिल है। हमारा कानून, पाकिस्तान का कानून लड़कियों को किस तरह से डील करता है इस पर्टिनेंट इशू के हवाले से, ये जानने के लिए हम हाजिर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील अजहर सिद्दीक साहब के पास। अजहर साहब, लड़कियां जो हैं शादी करना चाहती हैं, हमारे मुल्क का कानून उनको क्या क्या इख्तियारात देता है और उनको क्या क्या हदूद व क़यूद उनके लिए मुतय्यन करता है? सिर्फ चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, जो सर्टेन लिमिट्स के हवाले से बच्चों की शादी करने से मना करता है। मगर जहाँ तक जैसे बच्ची बालग हो जाए वो किसी तरह की कोई कानूनी कदगन हमारे कानून के अंदर नहीं है। इस बलूगत को डिफाइन कैसे किया जाएगा? देखिए, एक तो एज लिमिट के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है, लेकिन जो कि 18 साल के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बात कह दी है। दूसरी, जैसे भी हमारे यहाँ देखें, अब जो बच्चा, जो भी इंसान गवाही दे सकता है, अब गवाही देने के हवाले से भी एज लिमिट बड़ी वाज़ेह तौर पर दी गई है। इशू जरा थोड़ा सा हटके है यहाँ कि हमने इस सिस्टम को जरा सिस्टमाइज करने की कोशिश नहीं की। देखिए, बुनियादी तौर पर वजह यह है कि जो अब शादी अगर देखा जाए, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अब शादी तो हो गया, एज छोटी के हवाले से बाना, उसको कैंसलेशन कराना, वो एक अलग प्रोसीजर है। उसमें देखिए, अगर चाइल्ड मैरिज के हवाले से बात आएंगी तो वो सजा है। अब बार करने के हवाले से कि शादी वॉइड होगी ना, यहाँ हमारे तौर पर वाज़ेह तौर पर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। कबूलो हिजाब, मैं बहरहाल इस्लाम के, देखो वजह यह है, इस्लाम में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कानून जो 227 आर्टिकल 227 को सामने रखते तमाम कवानीन जो है इस्लामी शरह के मुताबिक बनने हैं। निकाह नामे के हवाले से शर्त सिर्फ ये निकाह पढ़ाना है। अब निकाह में रजामंदी के हवाले से कॉलम ऐसा कोई नहीं कि लिखा हुआ है कि वालिद मौजूद होगा या वालदा मौजूद होगी, बड़े वाज़ेह तौर पर गवाह नहीं। आप सारी चीजों को सामने रख दें, लेकिन आप इसको लेजिटिमाइज इस तरह से कर दें, इसमें नादरा की इन्वॉल्वमेंट ले लें, निकाह नामा कोई शादी सेंटर बना दें। यार, आप इसको मुश्किल काम है। वो बाप जिसने अपनी बेटी को पसंद की शादी पे कत्ल कर दिया, अपने दामाद को कत्ल कर दिया, क्या इनको दहशतगर्दों की तरह आयरन हैंडेडली डील नहीं करना चाहिए? देखिए, जो मैंने हिस्ट्री मुझे पता चली है कि बाप पहले उस दामाद को इस्तेमाल करता रहा है। अब जो तो बड़ा पेक्यूलियर एक केस है। अब इस चीज को सामने रख के देखें, ये तो अगर देखा जाए तो ये खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है। देखें, इस्लाम ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर, मैं जो कि कानूनी बात आप कर रहे हैं, वहां भी नाहक खून के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर डिफाइन किया है। और यहाँ भी आप देखें, इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि हम तेजाब के हवाले से मामला को तो लेके आते हैं, लेकिन इस काम को मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई घर से बेटी बहन हमारी घर से भागे और शादी करे, लेकिन आप इसको रेगुलेट करें।
नाज़रीन, इस तरह की कहानियाँ जिसके अंदर गुलाम हुसैन नामी शख्स ने, जो कि सुसर था, अपने दामाद और अपनी ही बेटी को कत्ल किया, ये कहानियाँ देखकर सुनकर यकीनन सोसाइटी के अंदर प्रिवेलिंग नेगेटिविटी जो कि ख़बरों की सूरत जन्म लेती है, हमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फेक्टेड ज़रूर करती होगी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर ये नाचती हुई, ये राज करती हुई जहालत के अंधेरे झट जाएंगे। अपने मेज़बान अहमद इमरान खान को हम लोग की पूरी टीम के साथ रहीम यार खान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।